تربیتی اداروں کے نمائندوں نے بے روزگار نوجوانوں کو کاؤنسلنگ فراہم کی. بیشتر نوجوانوں کو موقع پر ہی مختلف طرح کے کورسز کے لیے منتخب کیا گیا. بے روزگار نوجوانوں کو سرکاری خرچے پر تربیت فراہم کی جائے گی. ان امپلائمنٹ تو کافی ہے جموں کشمیر میں، تو یہاں پر تو انڈسٹریز بھی نہیں ہے اور پرائیویٹ جابز بھی نہیں ملتے ہیں اتنے، اور زیادہ تر لوگ گورنمنٹ جابز پر ہی یہ کر رہے ہیں، ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ جاب جو پالیسی لگائی ہے گورنمنٹ نے کہ 5 سال تک آپ کو 3500 پہ کام کرنا ہے اور پھر آپ کو آگے بڑھنا ہے، تو وہ کافی کچھ ٹھیک نہیں رہ رہا ہے. اب چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اپنا کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں جائے، وہاں اپنا کیریئر سے شروع کریں. میرے کو ٹوٹل JNK سے جو سلیکٹ کرنے ہیں لگ بھگ 650 کینڈیڈیٹس کا سلیکشن کرنا ہے، اینڈ جن کا ٹریننگز دلی، پنجاب، اتر پردیش وچ از لکھنؤ میں یا پونے میں، حیدرآباد میں، یہاں پہ ان کی ٹریننگز ہم لوگ کروائیں گے. آج شمالی ریلوے کے جنرل مینیجر VK گپتا نے سینئر افسران کے ساتھ ادھمپور کٹرا ریلوے لنک کا ٹرائل کیا. بعد میں وہ کٹرا ریلوے اسٹیشن پہنچے اور ایک ہون میں حصہ لیا. اس موقع پر انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس مسلسل سرحدی علاقوں کے عوام کا استحصال کرتی رہی ہے. کرنال کے ٹاڈ علاقے میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ کرنال اور کپواڑہ اسمبلی حلقے کے لوگ پچھلے کئی سالوں سے نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو جتا رہے ہیں، لیکن بدلے میں انہیں بدحالی کے سوا کچھ نہیں ملا ہے. انہوں نے کرنال کے عوام پر زور دیا کہ وہ یہ روایت بدل کر PDP کے ساتھ جڑ جائیں. ناظرین، ETV اردو کشمیر میں وقت ہے ایک اور وقفے کا، ابھی حاضر ہوتے ہیں. سردیوں میں تعمیراتی کام کی تکمیل کے لیے انجینئرز کا پسندیدہ ہیٹرک پروڈکٹس کشمیر کا تیار کردہ ریپیڈائٹ 2-in-1 اینٹی فریز فاسٹ ایکٹنگ سیمنٹ کمپاؤنڈ کا ہی استعمال کریں. بولو کیا، بولو 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 کیا، سدا یہ رہنے والا دودھ کو سہنے والا آ گیا. ٹاٹا بلو سکوپ بلڈنگ پروڈکٹس کا نیا شاہکار. عمارتوں کی چھتوں کی خوبصورتی میں ایک نیا انقلاب. ٹاٹا ڈیورا شائن کلر کوٹڈ ٹین. ٹاٹا ڈیورا شائن کی چادروں پر زنک کوٹنگ کی گئی ہے جو ان چادروں کو زنگ آلودہ ہونے سے بچاتی ہے. ڈاٹا ڈیورا شائن کی چادریں بولڈ ریڈ، نیچر گرین، کول گرین اور سمارٹ بلو جیسے دلکش اور خوشنما رنگوں میں دستیاب ہے. ٹاٹا ڈیورا شائن کے بااختیار ڈسٹریبیوٹر برائے جموں کشمیر ہیں ایمپائر انٹرپرائزز، نرسنگ گڑھ، بٹا مالو، سری نگر. کپڑوں کی جان، آپ کی شان، تاج شکتی ڈٹرجنٹ پاؤڈر. جیکٹس، پلوورز، یوز کمپینین. اب سارا دیش دوڑے گا. ممبئی دوڑے گی، کوچن بھی دوڑے گا، کشمیر کے ساتھ کنیا کماری بھی دوڑے گی، کولکاتہ کے ساتھ احمد آباد بھی جڑ جائے گا. دیش بھر میں 565 سے بھی زیادہ جگہوں پر لوہ پروش سردار پٹیل کی یاد میں ایک ساتھ ہوگا 2 کلومیٹر لمبا واک اینڈ رن. رن فار یونٹی 15 دسمبر 2013 صبح 8 سے 11. ورلڈ ریکارڈ بنانے والی اس ایتہاسک دوڑ کا حصہ بنے. رجسٹریشن کیجیے www.runforunity.com پر. شری نریندر مودی پریرت ابھیان، ان کا سندیش سننے کے لیے ڈائل کریں 08009 رن فار یونٹی، اسٹیچو آف یونٹی موومنٹ انیشیٹو. دوڑے گا بھارت، جڑے گا بھارت.
एम्पायर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजरीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार ने डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई मुश्ताक अहमद के साथ दराज का दौरा किया, मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और राशन के जखीरे का जायजा लिया। वाज़ेह है कि 2 दिसंबर को ईटीवी ने मौसम सरमा में करगिल में राशन की किल्लत से मुताल्लिक खबर नशर की थी, जिसके बाद मुतल्लिका हुक्काम ने दराज का दौरा किया। वाज़ेह है कि डिविजनल कमिश्नर कल जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग करेंगे। जिला पुलवामा के पापुर कस्बे में हजरत ख्वाजा मसूद वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर आस्ताना आलिया पर अक़ीदतमंदों का तांता बधा रहा। शब-ए-दारी और दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। इस मौके पर तबर्रुकात की निशानदेही भी कराई गई। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन की बहाली और मौसम में बेहतरी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। प्रत वरी आसान हजरत वली कामिल सुन दो ख्वाजा मसूद वली रहमतुल्लाह अलैह यमन जन वाबस्तगी हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख मखदूमी से प्रत वरी शिवान इज्जत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने पूंछ हल्के के लिए एक एम्बुलेंस अवाम के नाम मानवत किया। इस मौके पर एमएलए पूंछ भी मौजूद थे। जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में आज एथलेटिक चैंपियनशिप का आगाज हुआ। रियासत के तमाम अजला से एथलेटिक इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि इस चैंपियनशिप से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। फायदा ये है कि ये एसआरओ से एफिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे गोल्ड मेडल लेंगे, ये स्टेट नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, स्टेट चैंपियनशिप, अगर इसमें हम लोग ने गोल्ड मेडल लिया तो हमारा नेशनल में सिलेक्शन हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह अगर उसमें भी हमें गोल्ड आ जाएगा तो हमारी जॉब लग सकती है। कोई भी मेडल, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, कोई भी, उसमें फिर हमें आगे हेल्प मिलती है। जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई थी, उनके जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो इधर स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बाद में ये केसी पब्लिक स्कूल के बच्चे, टेनिटाल के बच्चे और ये जो अपने पुलिस जैन के पुलिस के बच्चे, ये सभी ने यहाँ पे इंतजाम किया है। फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत किश्तवाड़ के तलबा के ग्रुप को बंगलुरु समेत जनूबी हिंद के कई शहरों के टूर पर रवाना किया। इस तालीमी सैर का मकसद तलबा को मुल्क की रंगारंग तहजीब व सकाफत से वाकिफ कराना है। इस मौके पर डीसी किश्तवाड़ समेत आला फौजी अहलकार भी मौजूद थे। नाजरीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में देखिए खास बात हिना के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा।
लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत महबूब शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। बीएसपी ने पार्लियामेंट में उठाया मुजफ्फरनगर फसादात का मामला, उत्तर प्रदेश में सदराज के निफाज का मुतालबा। इंसदाद फिरक़ेवाना तशद्दुद बिल को ममता बनर्जी ने बताया बेकार, फेसबुक पर ममता के तबसरे से दानिश्वर तबका हैरान। और इंसदाद फिरक़ेवाना बिल की मंजूरी के मुतालबे में आई शिद्दत, कई रियासतों में मुहिम हुई तेज। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में सदरराज के निफाज का मुतालबा दोहराया है। मुजफ्फरनगर फसाद के ताल्लुक से बीएसपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये मामला उठाया और समाजवादी हुकूमत पर हालात पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। पार्लियामेंट में मुजफ्फरनगर फसादात की गूंज सुनाई दी। बीएसपी सरबराह मायावती ने इस मामले को उठाया और दोनों ऐवानों में मुजफ्फरनगर मामले पर बहस का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है, तो इस मामले पर चर्चा कराई जाए और सेंटर को इसमें दखल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर ऐसे हालातों को देखते हुए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगने की वहाँ पर सब जरूरत है, लेकिन इसकी तरफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बीएसपी सरबराह का कहना है कि वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया जाता तो लाखों अफराद बेघर नहीं होते और न ही दर्जनों अफराद की जाने जाती। बीएसपी सरबराह ने कैंपों की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। बनाए छोटे छोटे, तो लगभग 1 लाख के करीब लोग कैंपों में चले गए और फिर सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया तो कुछ लोग इधर उधर चले गए। तो आज भी वहाँ पर कैंपों में जो पीड़ित लोग हैं शिविर में, तो आज भी लगभग 60-70 हजार से कम लोग नहीं हैं। मायावती के मुताबिक कैंपों में रहने वाले हजारों पनाह गुज़ीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्हें तिब्बी इमदाद और बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही है, जिसके नतीजे में 50 मासूम बच्चे हलाक हो गए। खास तौर से जो मेडिकल एड देने चाहिए वो भी उधर नहीं दी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो केवल शिविर में लोग रह रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, तो उनके लगभग अभी तक केवल शिविरों में रहने वाले लोग जो है कैंपों में, तो 50 के करीब बच्चे वो मर गए। ये बड़ी दुखद घटना है। मायावती के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में समाजवादी हुकूमत इख्तिदार में रहने का अखलाकी जवाज खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। फिरक़ेवाना तशद्दुद बिल के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फेसबुक पर बिल को ही नाकारा करार दे दिया है और ममता बनर्जी के इस तबसरे पर दानिश्वर तबका बिल्कुल हैरान है। बंगाल के मुस्लिम लीडरों ने ममता बनर्जी से बिल की हिमायत पर भी जोर दिया है।
इंसदाद फ़िरका वाराना तशद्दुद बिल इन दिनों मुल्क का अहम मौजू है। फ़िरका परस्ती के बढ़ते नासूर को रोकने के लिए कांग्रेस ने इंसदाद फ़िरका परस्ती बिल लाने का ऐलान किया है। बिल के ताल्लुक से अब तक अखबारी नुमाइंदों के सामने तबसरे से गुरेज कर रही वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फेसबुक पर इस बिल को गैर अहम बताते हुए पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट से बिल की हिमायत न करने की हिदायत की है। ममता बनर्जी के इस तबसरे पर समाजी तंजीमों ने हैरानी का इजहार किया है। ममता बनर्जी से हम गुजारिश करेंगे, चूंकि उनका सेकुलर फेस वो रखना चाहती है, इसलिए इस बिल की हिमायत करें। भाजपा की आवाज के साथ टीएमसी के लीडर आवाज न। सरकारी प्रोग्रामों में पेश रहने वाले मौलाना कारी शफीक ने भी बिल की हिमायत में वज़ीर आला ममता बनर्जी से आगे आने की अपील की है। तलबा तंजीमें भी बिल की हिमायत में मुहिम चला रही हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इस बिल की मुखालफत न करें, बल्कि इस बिल को मुवाफकत के साथ पास होने देने में पार्लियामेंट की मदद करें और इस बिल को जरूर कामयाब बनाएं। इस बिल को लाना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ के जो कम्युनली पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, कम्युनली सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जो ज्यादतियां हो रही हैं, उन तमाम चीजों को चेक करने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल जो कांग्रेस गवर्नमेंट की यूपीए के पास जो पड़ा हुआ है बरसों से, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जमीयत ने बिल की हिमायत में रियासत भर में बेदारी मुहिम चलाने का इरादा जाहिर किया। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। मुल्क में फिरक़ेवाना फसादात का खतरा रोकने के लिए मुजवज़ा बिल को पास करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि कांग्रेस पिछले 9 बरस से इस मामले पर सिर्फ सियासत कर रही है। वहीं इंडियन नेशनल लीग के सदर के मुताबिक तमाम रियासतों से सलाह मशवरे के बाद ही इस बिल को पास कराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए संजीदगी से कभी कोशिश ही नहीं की। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज कांग्रेस की आंखें खोलने के लिए काफी है। क्योंकि ये मुल्क एक पार्टी की हुकूमत के तहत नहीं चल रहा है, ना बीजेपी और न कांग्रेस। रीजनल पार्टियां भी हैं, जैसे शुरू में जयललिता ने मुखालफत की, अभी ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जब तक डिटेल गुफ्तगू ना हो हाउ टू कीप बैलेंस बिटवीन फेडरल बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तब तक इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ईमानदार नहीं है, बातें करती है, पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर बातें करती है, इसलिए बिल पास होने का सवाल नहीं। दरअसल कांग्रेस इसको पास नहीं कराना चाहती है, सिर्फ प्रोपगंडा करके वोट की राजनीति कर रही है। वो ईमानदार इस बिल में नहीं है। इस बिल को पास कराने में कांग्रेस गवर्नमेंट कतई ईमानदार नहीं है, और साथ ही साथ ये बसपा और मुलायम सिंह की पार्टी भी ईमानदारी से इसमें साथ देने को तैयार। असेंबली इंतखाबात में पहली बार बड़ी तादाद में नोटा का इस्तेमाल किया गया, जिसने सियासी पार्टियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में नोटा के इस्तेमाल से बहुत से उम्मीदवारों को मायूसी हुई है, तो कुछ की किस्मत का सितारा भी बुलंदी पर पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार के असेंबली इंतखाबात में वोटर्स को नोटा के बटन का ऑप्शन दिया था। 4 रियासतों में उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद अवाम में मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों ने नोटा का बटन दबाने को लेकर तहरीक चलाई थी, जिसका असर वोटिंग के रोज भी नजर आया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान की 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में नोटा के बटन का इस्तेमाल इस कसरत से हुआ कि इसकी तादाद लाखों में पहुंच गई। सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में 6,19,000 वोटरों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान में 5,88,000, छत्तीसगढ़ में 4 लाख और दिल्ली में कुल वोट का 0.6% है। हमारी जो नोटा की मुहिम थी, खास करके गैस पीड़ितों क्षेत्रों में और भोपाल के क्षेत्रों में, हम उसको अभी भी सफलता पूर्वक मानेंगे, क्योंकि लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा बटन दबाया है। आप अगर थर्ड फ्रंट देख लें, जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स को छोड़ के अगर आप तीसरा, चौथा, 5वां देखेंगे, तो सबसे ज्यादा वोट तीसरे नंबर पे नोटा को ही मिला है हर एक कंस्टिट्यूएंसी से। तकरीबन 41 सीटों को तो मुतासिर किया है उसने, और ये नोटा जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में नोटा के बटन के इस्तेमाल से इंतखाबात में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। नोटा बटन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 41 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी ने जो कामयाबी हासिल की उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें उसके उम्मीदवारों की जीत के वोट का तनासुब नोटा के वोट से कम है। इसी तरह नोटा के इस्तेमाल से राजस्थान की 38 सीटें मुतासिर हुई हैं। अगर हम किसी एक से मुतमईन होते, ये 6 लाख बहुत बड़ी तादाद है, मैं समझता हूँ छोटी मोटी तादाद नहीं है,
के जो गैर मुतमईन हैं इन दोनों पार्टियों से, या ये कि उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे। असेंबली इंतखाबात में जिस तरह से सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवार को लेकर अवाम में सदाए एहतजाज देखने को मिला है, मुस्तकबिल में इसके और बुलंद होने के आसार हैं। ईटीवी न्यूज भोपाल। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचिन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। पापा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। राजस्थान असेंबली इंतखाबात 2013 ने सूबे में मुस्लिम लीडरशिप पर सवालिया निशान लगा दिया है। कांग्रेस ने 10 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से एक को भी कामयाबी नहीं मिल पाई, जबकि बीजेपी के 4 में से 2 उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। सियासी दानिशरों का मानना है कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप खड़ी करने की जरूरत है। चीजों से मुसलमानों को ये सीख लेनी चाहिए कि उनको कम से कम कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए, और ऐसे जो सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं उनको निकल करके ऊपर आना चाहिए। ये भी एक बात है कि उन लीडर्स को कि जाति मजहब की सियासत नहीं करके पूरे हिंदुस्तान लेवल की सियासत करनी चाहिए। मुसलमान है उसमें मुसलमानों के जो रहनुमा या जो नेता जिनको कहिए, वो ऐसा कोई नहीं है जो 36 कौमों को साथ लेके चल सके। तमाम जो मिल्कियत, तमाम जो नागरिक हैं, तमाम जो लोग हैं, उनकी भला करे, उनकी फलाह। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मगरबी बंगाल में लोकसभा की 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। रियासत में फ्रंट के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ये इत्तला दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि फ्रंट जनवरी में एक बड़ा इजलास भी मुनक्किद करेगा, जिसमें कुछ लाए अमल तय किए जाएंगे। उन्होंने किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद के इम्कान को नामुमकिन बताया। शुरू करी ना देरी को एमपी सीट का टारगेट किया है। जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारा प्रोग्राम बनेगा। अंदाजा है कि 9 जनवरी को हम प्रोग्राम करेंगे कलकत्ता से AIUDF का, जिसमें बातचीत होगी और अपना मौक़िफ़ हम जाहिर करेंगे। सेकुलरिज्म में, सियासत में धीरे धीरे लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए। खला पैदा हो रहा है और हमको महसूस हो रहा है कि सेकुलर ताकत मनमानी करते हैं। उत्तर प्रदेश में अरबी मदारिस के साइंस टीचर्स को पहले तो 2 बरस तक तनख्वाह ही नहीं दी गई, और फिर टीचर्स एसोसिएशन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद 100 टीचरों को तनख्वाह मिली भी तो महज 6 महीनों की। अब एसोसिएशन का कहना है कि पूरी तनख्वाह के हुसूल तक उनकी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन मदारसे अरबिया ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और मुलाकात करके मुतालबा किया था कि 2 साल से मुतवातिर साइंस टीचरों की
تنخواہیں باقی ہیں انہیں تنخواہیں جلد سے جلد دی جائیں. تو شاید یہ اسی کا اثر ہے کہ ابھی کچھ فائلوں پر سینکشن ہوا ہے اور کچھ مدارس کے لیے جو ہے انہوں نے پیسہ جو ہے بھیجا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی جو تنخواہیں جو ہے وہ ایک مشت آتی ہے کچھ 4 مہینے کی. تو ابھی ہم لوگوں کو جو بجٹ ملا تھا وہ 12-13 کے لیے تھا 25 مدرسوں میں, جس میں 102 ٹیچر تھے, سب کا بھگتان کر دیا گیا. لیکن یہ فنڈ ایلوکیشن جو ہے بھارت سرکار کی چونکہ یوجنا ہے تو وہیں سے ہوتا ہے. اب کس طریقے سے ہوتا ہے یا کیسے پردیش کو جاتا ہے یہ آتا ہے یہ تو. جھارکھنڈ کے وزیر اقلیتی فلاح حاجی حسین انصاری نے کہا ہے کہ MSDP اسکیم کے تحت ریاست کے اقلیتی اکثریت والے بلاکوں میں رہائشی اسکولوں کے قیام کی تجویز حکومت کو پیش کی جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ کستوربا گاندھی کنیا ریزیڈینشل اسکول کی طرز پر رہائشی اسکول کا قیام ضروری ہے. مسلمان ایجوکیشن بہت پیچھے ہے, اس کا ایک ہی ہم لوگ اپائے کریں گے جو مسلمان ایجوکیشن میں کیسے آگے بڑھے. تو اس کے لیے ہم اس آواسی ودیالیہ کھولنے کے لیے پرستاو بھیجیں گے. یہ اندرا آواس چاپا کل یہ سب سے یہ تو سرکار کر رہی ہے. اسے MSDP سے ہم لوگ ایسا کھڑا کریں گے جس میں خاص کر مائنورٹی کو فائدہ ہو, یہ سوچ رہے ہیں ہم لوگ. ہاں, اگر یہ ہمارے حاجی صاحب نے اس طرح کا پروپوزل بنایا ہے تو اس کو احسن نگاہ سے دیکھنی چاہیے. اور اس طرح سے بھی کام ایک جہت یہ بھی ہے, ایک کم سے کم کچھ تو اس سے فائدے ہوں گے اور کچھ تعلیم کا معیار بڑھے گا, تناسب بڑھے گا. اور جب ریزیڈینشیل ہوگا تو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے شوق پیدا ہوگا. اور یہ کام جو ہے اگر ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے احسن نگاہ سے دیکھیں اور اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے. 14 سیمینار اتر پردیش میں مسلم بچیوں کے لیے حکومت کی اسکیم ہماری بیٹی اور اس کا کل, اس کے تحت دیے جانے والے 30,000 روپے کی ایک مشترک رقم میں تخفیف کر دی گئی ہے. اقلیتی امور سے وابستہ افسران کا کہنا ہے کہ اب مسلم بچیوں کو 30,000 روپے کے بجائے صرف 20,000 روپے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے والی بچیوں کے لیے نئی شرائط میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. جیو آیا اس میں 30,000 کے استھان پہ جو ہے یہ دھنراشی 20,000 کر دی گئی ہے اور اس میں کچھ شرطیں میں بھی پریورتن کیا گیا ہے. جیسے یہ کہ اس نے پہلی بار ہائی اسکول کیا, اس سے پہلے ہائی اسکول نہ کیا ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ پہلے اس میں اواحد کو ہی پہلے لابھ ملے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ اب ان کو ایک اسٹامپ پیپر پہ ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا 10 روپے کے اسٹامپ پہ کہ انہوں نے جو ہے پہلے کبھی ہائی اسکول نہیں کیا ہو. ایک پراروپ یہ بھی ہے. بنگلورو کے بعد اب ہبلی میں کرناٹک کے اردو قلمکاروں کی دوسری کانفرنس منعقد ہوگی. 14 دسمبر کو ہونے والی ہبلی کی کانفرنس میں ریاست کے 4 اضلاع کے اردو قلمکار شرکت کریں گے. کانفرنس کے کنوینر اور شاعر مبین منور نے بنگلورو میں یہ اطلاع دی ہے. مبین منور نے کہا کہ ہبلی کی کانفرنس میں دھارواڑ, بیلگام, گدک اور ہاویری اضلاع کے اردو قلمکار شرکت کریں گے. حق و انصاف کی تائید, ظلم و استبداد کی مخالفت کانفرنس کا عنوان ہوگا. اس کانفرنس میں اردو زبان و ادب کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. مغربی بنگال میں علم کی شمع روشن کرنے والی نامور خاتون بیگم رقیہ ثقافت کی کولکتہ میونسپل کارپوریشن میں 133ویں سالگرہ منائے گی. کارپوریشن حکام نے اس موقع پر ان کی تعلیمی اور سماجی خدمات کو یاد کیا. بنگالی مسلم فیملی سے تعلق رکھنے والی بیگم رقیہ ثقافت اپنی تعلیمی خدمات کے لیے جانی جاتی ہیں. خود تعلیم سے نابلد رہی بیگم رقیہ نے چھپ چھپ کر اپنے بھائیوں سے ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر شادی کے بعد اپنے شوہر سے تعلیم حاصل کی. اس زمانے میں خواتین کی تعلیمی دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے آگے آتے ہوئے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر خاصا زور دیا اور اپنی تمام تر جائیداد تعلیم کے نام وقف کر دی. ان کی جانب سے بنایا گیا ثقافت میموریل اسکول ریاست کا سب سے اہم سرکاری اسکول ہے جہاں اردو اور بانگلہ میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے. مسلمانوں کے مقابلے غیر مسلم بچوں کی بڑی تعداد ہے جو اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. بیگم رقیہ کی یوم پیدائش پر کولکتہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ان کے نام سے بنی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے.